So लास्ट क्लास में हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन देख रहे हैं ना, राइट? नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन में हम क्या देखे हैं? सो इफ यू हैव a coordinate system and if you have a straight line, if you have a straight line, मान लीजिए ऑरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ओके, if this is the perpendicular and if the length of the perpendicular from origin onto the straight line is p, and if this perpendicular is making an angle alpha with x-axis, then what is the equation of this green line? The equation of this green line is what? बोलिए। x cos alpha plus y sin alpha equals to p. x cos alpha plus y y sin sin alpha alpha equals is equal to p. Okay. So if you want to construct the equation of a line in normal form, what are the given informations that you have? क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा? क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा? एक है अल्फा मिलेगा, दूसरा पी मिलेगा। ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है अल्फा इज इक्वल टू समथिंग लाइक 45 degrees. Alpha is 45 degrees and p is equal to 3 units. So can you write the equation of a line with these parameters? लिख सकता है क्या नहीं? Yes, sir. So answer क्या होगा? What is the equation of the line? X into cos 45 is 1 by root 2 plus y into sin 45 is again 1 by root 2 is equal to what is p? Perpendicular distance from origin. 3. 3. So simply x plus y is equal to 3 root 2 हो जाएगा। सही है क्या नहीं? Yes, sir. So the equation of the line in normal form is x cos 45 degrees plus y sin 45 degrees is equal to 3. This is the equation of the line in normal form. अगर मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन आपको नॉर्मल फॉर्म में दिया गया है, what are the informations that will be visible to you? One of the information that will be very clearly visible to you is the perpendicular distance. समझ रहे? एक बार लाइन को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो राइट साइड में जो भी कांस्टेंट बचेगा, जो भी पॉजिटिव कांस्टेंट बचेगा, दैट इज व्हाट? दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ये बहुत अच्छे सा माइंड में रखिए, नेक्स्ट टॉपिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा आपको। ओके, and whatever is the angle here is the angle made by the perpendicular from origin with the positive direction of x-axis. Clear है? समझ में आ रहे? Yes, sir. Now using this concept, let us try to create a new procedure to find distance of a line from origin. For example, मैं आगे जा रहा हूं, ये नोट किया होगा। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं मैं। Yes, Please sir. wait, sir. देखिए अब क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3x plus 4y is equal to 10
into normal form. And using this, find the distance of this line from origin. मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्लियर? Now I want you to solve this. Okay, देखिए solution. So अगर given equation is 3x plus 4y is equal to 10, okay? You have to convert this into normal form. Normal form का मतलब क्या है? x times cos of some angle होना चाहिए plus y times sin of same angle होना चाहिए, okay? Is equal to p is the perpendicular distance from origin. This p has to be a positive number. सही है क्या नहीं? This p has to be a positive number. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So अब x के साथ जो 3 है इसको cos अल्फा, y के साथ जो 4 है इसको sin अल्फा मैं एज्यूम कर सकता हूं क्या नहीं? Yes, sir. The answer is no. इसको आप Yes, कोई no. भी दो नंबर्स को आप sin अल्फा cos अल्फा एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि sin अल्फा और cos अल्फा के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन है विच इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1. ये तो होना चाहिए ना? दो नंबर्स में एक sin अल्फा एक cos अल्फा होना है तो दोनों का स्क्वायर का सम जो है वो 1 होना चाहिए. बट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है? 25. It's not 1. So I cannot assume this as sin alpha and I cannot assume this as cos alpha. ये clear है पहला? Yes, sir. Yes, So, Yes, sir. Yes, sir. दो आर्बिट्ररी नंबर्स को sin alpha cos alpha बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक प्रोसेस है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम सीखे हैं. याद है? डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a cos alpha प्लस b sin alpha को बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने का प्रोसेस याद है? सो वो प्रोसेस क्यों किया हम? So देखिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ. So what I do is 3x plus 4y is equal to 10 को I'll divide on both sides with root of x coefficient square plus y coefficient square. समझ में आ रहे? Yes, sir. So what is root of x coefficient square plus y coefficient square? Root of 3 square plus 4 square. यहाँ भी root of 3 square plus 4 square से डिवाइड कर रहा हूँ. अगर अगला क्वेश्चन में नंबर्स डिफरेंट है तो आप यहाँ नंबर्स चेंज करना है. ओके, क्लियर है? Yes, sir. So this implies 3x plus 4y by 5 is equal to 2 हो रहे हैं. This implies x times 3 by 5 plus y times 4 by 5 is equal to 2 है, right? अब 3 by 5 and 4 by 5 को cos alpha sin alpha एज्यूम कर सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, I can Yes, assume. sir. Yes, sir. सही है. So this is of the form x into cos alpha plus y into sin alpha is equal to 2, where alpha is how much? Where I'll write where 53. again maths में हम 53 यूज नहीं करते हैं, ठीक है? We'll just write it as tan inverse of 4 by 3. अल्फा ऐसा एंगल है जिसका tan जो है वो 4 by 3 है, राइट? cos अल्फा 3 by 5 sin अल्फा 4 by 5 का मतलब क्या है? tan अल्फा कितना है? 4 by 3 है ना? Yes, sir. yes, sir. So now
we have converted the given equation 3x plus 4y is equal to 10 into what? Into normal form. Okay. अब ध्यान दे दीजिए, एक बार नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो राइट साइड में जो बचता है वो क्या है? What is the number? P. That is nothing but p. So what is this 2? This 2 is nothing but distance of this line from Origin. origin. So ये भी आंसर आ गया ना. What is the distance of this line from origin? The answer is equal to 2 units. देखिए ये नया चीज है जो आप अभी कर पाया, पहले जो नहीं कर पाते थे. ओके और नॉट? अगर Okay, ओके है sir. तो बोलिए, आगे जाए. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ओके, सो नोट किया? Yes, sir. अगर नोट किया तो नेक्स्ट पेज में जा Yes, रहा हूं sir. मैं. ओके, नोट किया ना सब कुछ? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं. रूट 3x minus y is equal to 12. Find the distance from origin. इस लाइन का origin से distance निकालना है. निकाल सकते हैं मेरे लिए? कोई निकाल सकते हैं? सो प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस सिंपली देखिए, सो ये a है, -1 is b. If you compare this with ax plus by is equal to c. a का वैल्यू कितना है? √3. b का वैल्यू -1. सही है क्या नहीं? सो डायरेक्टली आप इसको cos थीटा, इसको sin थीटा एज्यूम नहीं कर सकते हैं. So to assume cos theta and sin theta, I have to divide both sides with which number? कैलकुलेट करके बोल सकते हैं मेरे लिए? 2. 2 है ना, रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट ऑफ 4. सो 2 से आप डिवाइड करना है. सो √3 by 2 times x minus 1 by 2 times y is equal to 6. Now this is in the form of x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. अल्फा कितना है इस बार? नंबर्स अच्छा है, आप एग्जैक्टली अल्फा फाइंड कर सकते हैं. सो कुछ गेसेस देखिए. cos is √3 by 2, sin is -1 by 2. cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में है? Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? सही क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल है. एंड मैग्नीट्यूड कितना है? cos √3 by 2 होना है, इसका मतलब 30 डिग्री है ना. Yes. Magnitude was Yes, sir. Yes. you have to go to fourth quadrant. So what is the angle? -30 degree. Minus 30 degrees. So you can write this as x times cos -30 degrees plus y times sin of -30 degrees is equal to 6. Okay. So what is the distance of this line from origin? The answer is 6. 6. 6 units. समझ आ रहे? So एक जनरल लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं समझ में आ रहे? द बेसिक टेक्निक इज बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, विल गो फॉरवर्ड आफ्टर दैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस बार द लाइन इज 7x plus 3y plus 8 is equal to 0. This is the equation of the line.
Again, the question is convert to normal form and find the distance from origin. Okay. So convert to normal form and find distance from origin. Okay. So let us start the process. So what's the first step? First step बोलिए. 7x plus 3y is equal to minus 8. Constant को मैं left side भेज दिया. What is the next step? Can anybody tell me what the next step is? Divide both sides by root of a square plus b 7 square. square plus 3 square. So root of a square plus b square कितना आएगा इस बार? Square root of 58. सही क्या नहीं? 49 plus 9. yes sir. So अब देखिए x times 7 by root 58 plus y times 3 by root 58 is equal to minus 8 by root 58. Is this the normal form of the line? No, No, sir. sir. क्यों? Sir, वो minus- P minus में है. So this is not the final answer. This is not the normal form. Normal form में the thing that you need to remember is right side जो है वो positive number होना चाहिए, right? Clear है? So उसके लिए मैं क्या करूं? So ये minus sign जो है मैं इस तरफ भेज देता हूं. Okay, that means I am multiplying both sides with a minus sign. कर सकता हूं? Yes, So this sir. implies x times minus 7 by root 58 plus y times minus 3 by root 58 is equal to 8 by root 58. Now this is in the normal form. So इसको आप x cos alpha plus y sin alpha is equal to p जैसा assume कर सकते हैं. What is alpha? ध्यान दे दीजिए xp cos alpha भी नेगेटिव sin alpha भी नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? Tan inverse 3/7. Where alpha is equal to tan inverse of 3/7 तो है, right? But थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है क्योंकि Sir, अल्फा pi tan plus इनवर्स कर 3/7 किया तो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव आ जाएगा ना. Sir, pi plus tan inverse 3/7. पाई प्लस tan इनवर्स 3/7, राइट. सो क्योंकि ये वाला एंगल को मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, राइट. Yes, sir. सो एक एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाते हैं? पाई प्लस करके, राइट. Yes, sir. सो द आंसर इज अल्फा इज tan इनवर्स 3/7 नहीं है, अल्फा इज पाई प्लस tan इनवर्स 3/7. ठीक है, आपको नंबर वाइज आ जाएगा. इसके बाद साइंस देख के आपको करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट में लेके जाना है. फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, पाई माइनस लिखना पड़ेगा. समझ आ रहे? क्लियर है क्या नहीं ये? Yes, sir. सो आप देखिए अगली बार से मान लीजिए कन्वर्ट टू नॉर्मल फॉर्म आपको करना नहीं है. फॉर एग्जांपल you just want the distance from origin. Do you see some sort of formula which works? Actually देखिए प्रीवियस 3 क्वेश्चंस देख लीजिए आप. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ये वाला क्वेश्चन देखिए. डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का कुछ फॉर्मूला जैसा आपको लग रहा है? 3x plus 4y equal to 10 का 2 आंसर आया. ये 2 कैसे आया? 10 को आप किससे डिवाइड किया? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड किया, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में
12 को किससे डिवाइड किया? रूट ऑफ रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √3 square plus 1. आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या किया आपने? √7 square plus 3 square. हाँ, समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए नॉर्मल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ नेगेटिव सिंबल आया, दैट नेगेटिव सिंबल इज एनीवे गोइंग टू द अदर साइड। So Yes, sir. number wise, do you see some sort of formula for distance from origin? So वो formula मैं लिखने Yes, वाला sir. हूँ, okay? देख लीजिए, distance from origin of line ax plus by plus c equal to 0 is, any ideas what is the formula? Formula क्या है, कोई बोल सकते हैं? C divided by by root of a square plus b square बहुत ही अच्छा, divided by root of a square plus b square. बहुत अच्छा है। इसको एक मॉड लगा देता हूँ, ठीक है? मतलब सी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? देखिए, एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन लुक्स वेरी इनोसेंट ऑन इट्स फेस, बट उसको यूज करके हम एक लाइन का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल पाया। ये पहले आप एक्सपेक्ट नहीं किया ना, जब आप नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे, व्हेन वी स्टार्टेड नॉर्मल फॉर्म वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, ठीक है? दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ओके, आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm going to the next page, okay? So the next topic is general equation of a straight line. General equation of a straight line, okay? So as you can see from all the derivations that we have done, कोई भी straight line का कोई भी form use करके अगर equation निकाल दिया तो the equation is always looking like ax plus by plus c equal to 0, right? इसी फॉर्म में आ रहा है ना, x के साथ कुछ कोएफिशिएंट, y के साथ कुछ Yes. कोएफिशिएंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, राइट? Yes, sir. So the general equation of a straight line is a linear equation in two variables, okay? Clear है? The general equation of a straight line is a linear equation in two variables, okay? Two variables. So आप देखिए, अब to find different properties of A. To find different properties of a straight line. मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन का आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप फाइंड करना है, ओके?
So how do you find the slope of a straight line? The simple process is you have to convert it into a form where slope will be visible. समझ में आ रहा है? आप अलग अलग फॉर्म्स देख लीजिए, कौन सा फॉर्म में स्लोप जो है वो आपको अलग सा दिख रहा है. So take slope intercept form, y is equal to mx plus c. So if you write this equation in the form of y is equal to something into x plus something, तब x के साथ जो भी नंबर आएगा that will be the slope. And constant का प्लेस में कोई भी नंबर आएगा that will be the which intercept? Y intercept. Y intercept. Y Okay. intercept. So अगर मान लीजिए इस लाइन का स्लोप चाहिए, so हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. So कन्वर्ट करेंगे. So by is equal to minus ax minus c, right? So y is equal to minus a by b into x minus c by b, right? Now this equation is converted into the form of y is equal to mx plus c. So ये जो नंबर है x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ये क्या होगा? Slope. This will be the slope of the line. And ये minus c by b क्या होगा? Y intercept. Y intercept. Okay. So slope of a line का एक फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं अभी. So slope of ax plus by plus c equal to 0 क्या है? Is simply minus a by b. समझ में आ रहा है? That is nothing but minus of x coefficient by y coefficient. Okay. समझ में आ रहा है? So एक लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली इस फॉर्मूला से आपको y इंटरसेप्ट तो आ गया, बट ये इंटरसेप्ट निकालने का और इजी प्रोसेस हम डिस्कस किए ना कल का क्लास में, सेम आंसर से आएगा. सो इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, आपका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट एक ही समय में आ जाएगा. ओके. सो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे दिखेगा? x बाई समथिंग प्लस y बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. Then whatever is below x is x intercept and whatever is below y is y intercept. Okay. क्लियर है क्या नहीं है? सो यहां तक अगर आप नोट किया तो हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. Noted, sir. नोटेड? अब देखिए, so if you have ax plus by plus c equal to 0, so ax plus by is equal to minus c, right? Ax plus by by minus c is equal to 1, right? Yes, So sir. x by minus c by a plus y divided by minus c by b is equal to 1 बोल सकता हूँ. Yes, sir. So now this equation looks like the equation in intercept form. So x के नीचे वाला जो है वो क्या है? X intercept. Okay, this is the x intercept. So this is y intercept. Okay. And यही जो numbers है, these numbers can also be derived by using this shortcut. इस equation में अगर y को 0 पुट किया तो x क्या आ रहा है? देखिए, ax plus c is equal to 0. So x is equal to minus c by a आया. So वही आया ना x इंटरसेप्ट. अगर y इंटरसेप्ट चाहे तो x को 0 पुट कर लीजिए. by plus c equal to 0. So y is equal to क्या आ रहा है? Minus c by b. Okay.
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने का शॉर्टकट समझ में आ रहे? एक लाइन में एक्स को 0 पुट करके वाई को सॉल्व करिए, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। वाई को 0 पुट करके एक्स को सॉल्व करिए, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। ओके, एंड ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन is nothing but modulus of c by root of a square plus b square. Okay, this is also a formula. समझ में आ रहे formulas? फॉर्मूला समझ में आया सारा? Yes, sir. सर Now वो let क्या us, लिखे मॉड में डाल के? क्या है बेटा? वो मॉड में डाल के क्या लिखे हैं? c by root of a square plus b square, distance from origin. वही ना फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। यस सर। Now let us try to solve some questions. Okay, so first question, 4x minus 5y is equal to 20. Okay, find properties of this line and draw the line on a graph. इसका प्रॉपर्टीज निकाल के ग्राफ शीट में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो हाउ कैन वी गो फॉरवर्ड? प्रॉपर्टीज का मतलब है स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन वगैरह वगैरह। ओके, सो फर्स्ट ओके, सो स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप? स्लोप का फॉर्मूला याद है? माइनस ऑफ, बोलिए, माइनस ऑफ A by B. एक्स कोएफिशिएंट बाय वाई कोएफिशिएंट। एक्स कोएफिशिएंट तो 4 दिख रहे हैं सबको, डिवाइडेड बाय वाई कोएफिशिएंट कितना है? -5। ओके, सो व्हाट इज द स्लोप? 4/5। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब लाइन का डायरेक्शन कैसा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन? इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जाना है ना लाइन। अगर ऐसा जाने वाला लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसा जाने वाला लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? X intercept is can simply be found by putting y is equal to 0, right? y को आप 0 पुट कर लीजिए। So x कितना आ रहा है? 4x is equal to 20, x is equal to how much? y को 0 पुट किया तो x is equal to 5 आ रहा है, right? So this is the x intercept and x को 0 पुट किया तो y कितना आया? -4. कितना? -4. So these are the intercepts. समझ में आ रहा है? So slope, x intercept, y intercept. Okay. So if I ask you what is the point where this graph meets x-axis, x-axis को कौन सा point पे meet करेगा? This line cuts x-axis at which point? x-intercept 5 का 5, मतलब है the 0. point is 5,0. Okay. y-intercept -4 का मतलब है the point is 0, -4. Okay.
इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कितना है बोलिए? द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज हाउ मच? कुछ बोल सकते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 20 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। माइनस फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो कितना आएगा? 25 प्लस 41. 16 कितना? 41. 41. So 20 by square root of 41 is the distance from origin. Okay. So can you roughly draw the graph? Graph draw कर सकते हैं? So graph draw करेंगे. This is x axis, this is y axis. Okay. So graph draw करने का सबसे easy method है x intercept y intercept ले लीजिए, वो दोनों को join कर लीजिए, तो आंसर आ जाना चाहिए, राइट? x intercept कितना है? 5,0 somewhere here, right? y intercept is 0,-4 नीचे होगा, सही क्या नहीं? नीचे होगा -4, right? So what is, how does the line looks like? Line कैसा होगा? Somewhere like this. ठीक है, roughly मैं draw कर रहा हूँ. So x intercept is -4, y intercept is ये वाला -4 है, x intercept is 5. Positive slope दिख रहा है? Can you see the positive slope? Easy? Yes, sir. Yes, sir. So अगर ये समझ में आया तो हम आगे जा सकते हैं. Yes, sir. नेक्स्ट ये देखिए, the next topic is general equations of parallel and perpendicular lines. General equations of parallel and perpendicular lines. Okay. For example, देखिए मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है. लेट अस राइट द स्टेटमेंट्स. ओके, माय फर्स्ट स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक दिस. Any line parallel to ax plus by plus c equal to 0 looks like ax plus by plus lambda is equal to 0. This is my first statement. Statement looks very simple, but questions में बहुत powerful statement है. क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट समझ में आ रहे? बोल रहे हैं कि कोई भी लाइन मान लीजिए आपके पास ax plus by plus c एक लाइन है आपके पास. Any line parallel to this line will always looks like ax plus by plus lambda equal to 0. ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा. क्यों समझ में आता है? क्योंकि if two Yes, lines sir. are parallel, their slopes are equal. And slope is determined by which numbers? Slope is determined by a and b, right? सही कि नहीं? So अगर दोनों का स्लोप सेम है, ये वाला पार्ट तो चेंज नहीं होगा ना, राइट? बट लाइंस तो अलग है. सो क्या चेंज होना चाहिए दोनों में? ओनली द कांस्टेंट चेंजेस. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So if two lines are parallel to each other, they differ only by a constant. Clear है क्या नहीं?
ओके और नॉट? सो नेक्स्ट देखिए, ये डी बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ. सेकंड स्टेटमेंट, so the next statement is any line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 looks like bx minus ay plus lambda is equal to 0. अगर ये स्टेटमेंट अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है. Can someone understand why this happens? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर परपेंडिकुलर Sir, लाइन है सर तो मतलब परपेंडिकुलर दोनों स्लोप का का स्लोप प्रोडक्ट माइनस वन होता है प्रोडक्ट माइनस सर। वन है। -1 पर होना दो चाहिए लाइंस इसलिए। परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप्स जो है उसका प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. सो इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाय बी, राइट? राइट, माइनस ए बाय बी. इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाय बी. सो इसका परपेंडिकुलर लाइन ऐसा होना चाहिए जिसका स्लोप कितना होना चाहिए? बी बाय ए होना चाहिए, राइट? So as you can see, the slope of this line is minus b by minus a, which is b by a. दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 हो रहा है. ओके, -1. क्लियर है क्या नहीं? यस सर. Yes, sir. ये दो स्टेटमेंट्स लिख लीजिए. We'll try to apply these two statements in questions. अगर नोट किया तो बोलिए. नोटेड सर. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. ठीक है. You have a coordinate system. Assume that you have a coordinate system. Okay. So assume that you have some sort of a straight line. Okay, एक straight line भी. So let this straight line be 3x minus 4y is equal to 7. Okay. थोड़ा सा चेंज करता हूँ. 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. Okay. Let this be the straight line. Okay. Now my question is simply, अब एक point है which is 2, 0. This is a point A. You have to find, the question is find a line through 2, 0, through the point A2, 0, which is A parallel to B perpendicular to 3x minus 4y plus 7 is equal to 0. Question समझ में आ रहे? So what is the thing that you need to do now? क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन फाइंड करना है जो वो ग्रीन लाइन से पैरेलल है
and you have to find a line through the same point 2 comma 0 which is perpendicular to the given line. Okay, so you have to find the equation of this line and this line. So कैसे solve कर सकते हैं हम? कुछ ideas? Any ideas? स्लोप निकालिए सर, स्लोप। स्लोप हाँ? पॉइंट फॉर्म से। स्लोप पॉइंट फॉर्म बहुत सारा फॉर्म्स है, ठीक है, बट लेट अस यूज द प्रीवियस टू स्टेटमेंट्स. अब देखिए, दिस ग्रीन लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, एनी लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 should look like what? Should look like 3x minus 4y plus lambda is equal to 0. यस सर। Yes, sir. मतलब ये वाला लाइन भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, राइट? दिस इज अ जनरल लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, बट मुझे कोई भी लाइन नहीं चाहिए. आई वांट दैट पर्टिकुलर लाइन विच इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट 2 comma 0. Clear? So my next step is, according to the problem, the line passes through which point? The point A 2 comma 0, right? इसका मतलब 2 comma 0 जो है इसको सेटिस्फाई करना है क्या नहीं? सेटिस्फाई करना है ना? Yes, sir. This implies 3 times 2 minus 4 times 0 plus lambda is equal to 0. इसका मतलब lambda क्या होना चाहिए? What should be the value of lambda? -6. -6. इसका मतलब if this parallel line has to pass through the point 2 comma 0, lambda has to be -6. This implies the required equation is what? The required equation is 3x minus 4y minus 6 is equal to 0. वो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने से ये इजी लग रहा है ना? ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ यस रहा है, सर। बट मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं आप. If you are doing objective questions, this will be an oral question now. Just 3x minus 4y मेंटेन करना है, इस पॉइंट से पास कराइए, लैम्डा एडजस्ट कर लीजिए. कर सकते हैं? अब हम परपेंडिकुलर लाइन में जाएंगे. Yes, sir. नेक्स्ट पेज में जाओ. ओके बेटा, सो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. सो बी, एनी लाइन perpendicular to 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 looks like ठीक है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लुक्स लाइक. देखिए, आपको क्या करना है, अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट इंटरचेंज करना है और एक्स्ट्रा एक माइनस इंक्लूड करना है. सो सिंपली 4x plus 3y plus lambda is equal to 0. ये 4 and 3 एक्सचेंज किया और एक माइनस को मैं प्लस कर लिया. So any line perpendicular to this looks like this form, but this is any perpendicular line, but I want the perpendicular line to pass through 2 comma 0
but according to the problem, the line passes through 2 comma 0. This implies 4 times 2 plus 3 times 0 plus lambda is equal to 0. This time lambda is equal to minus 8. This time lambda is equal to minus 8. Okay. So अगर lambda minus 8 है तो the required line is 4x plus 3y minus 8 is equal to 0. So note कर लीजिए. ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. So next question. Same question देता हूं. I want you to do this. Okay. So find a line parallel and perpendicular to 4x plus 7y plus 8 is equal to 0, which passes through 5 comma minus 7. So this is a question which I want you to solve. So I'll give you a minute to solve this. If you have understood this concept, आपका oral ये question जो है वो orally भी कर सकते हैं. So देखिए मैं orally कर रहा हूँ. Parallel line के लिए आपको 4x plus 7y 4x plus 7y को अप्लाई करना चाहिए. प्लस या इज इक्वल टू लैम्डा करो, फर्क नहीं पड़ेगा. सो इज इक्वल यहाँ कौन सा नंबर लिखना है? यू हैव टू राइट ए नंबर हियर सच दैट द इक्वेशन सैटिस्फाइज दिस पॉइंट. सो आप पुट कर लीजिए 4 5 20 7 7 is 7 into minus 7 is minus 49. So 20 minus 49 minus 89. So next, if you want perpendicular line, क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट्स को एक्सचेंज करके एक एक्स्ट्रा माइनस इंट्रोड्यूस करना है. सो 7x 4y के साथ एक माइनस 4y लगाना पड़ेगा. Coefficients are exchanged and an extra minus is introduced. So is equal to. So the number that you write here should be such that this equation satisfies this point. So satisfy कराइए. 7 5s are 35 minus 4 into minus 7 plus 20. So 35 plus 8. कितना? 63 is the. So in
MCQ type questions, you can solve this question orally. अगर नोट किया तो हैंड रेस कर लीजिए, हम आगे जाएंगे. ओके. So next is formulas concerning, sorry, so formulae involving distances. Formulae involving distances. So we have already seen one formula which involves distances. कौन सा है? The distance of a line from origin. Okay. So if you have a line x plus by plus equal to 0, the distance of this line from origin is given by c by root of a square plus b square. Okay. This is the first formula, that is distance of the line from origin. So now next what formula we are going to see is, so if you have a straight line, मान लीजिए आपके पास एक straight line है, okay, and assume that you have a point A, x1, y1, okay, you have a point x1, y1. This line is ax plus by plus c equal to 0. The distance of this line from origin, the distance of this line from origin is given by this formula. Now I want the distance of this line from this point. इस point से perpendicular distance p is how much? So what is the distance of this line from origin? So can anybody give some sort of idea how to find this distance? Easy है क्या या इतना easy नहीं है? अविरूप बनर्जी आप थोड़ा सा हाथ रेस करिए बेटा. अविरूप बनर्जी हाथ रेस करिए. ओके. अमन आप हाथ रेस करिए. अमन हाथ रेस करिए. ओके गुड. सर पहले ओरिजिन से पॉइंट ए तक का निकालना होगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर ओरिजिन से पी का. वैसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा. मान लीजिए इस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है आपको, मान लीजिए ए यहाँ है, फॉर एग्जाम्पल ए इज हियर. आप ऐसा कर सकते हैं
ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल के क्या माइनस करिएगा ये वाला डिस्टेंस के लिए? ऐसे नहीं कर सकते ना? कैन यू सी दिस? यस सर। सो कुछ दिमाग लगाइए। सॉरी मैं फिर ड्रॉ करता हूँ। कुछ ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स कुछ कर सकता है क्या आपके पास? लाइंस है, एक स्ट्रेट लाइन है which is ax plus by plus c equal to 0, and you have a point x1 y1. This line is ax plus by plus c equal to 0. I want this perpendicular distance. Okay. So एक रास्ता है बेटा, देखिए आप सोच सकते हैं one of the ways, देखिए let this point be P, let this point be Q, सही है? यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं आप। इस ट्रायंगल APQ का जो एरिया है आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है स्टेयरकेस फॉर्मूला, दूसरा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड इस ट्रायंगल का हमको हाइट ही चाहिए। आई जस्ट वांट द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं यहाँ डेरिवेशन करता हूँ। सो डेरिवेशन कैसे करेंगे? नेक्स्ट पेज में करूँ डेरिवेशन। देखिए, so you have, sorry, so you have a coordinate system and you have a straight line, okay, and I have a point A, okay, मान लीजिए पॉइंट जो है वो A है, okay, so I want the perpendicular distance, right? This line is AX plus BY plus C equal to 0. So if this point is P and if this point is Q, what are the coordinates of P? Can anybody say the coordinates of P? P is nothing but the x-intercept of this line, right? So x comma 0. नहीं, ये लाइन के इक्वेशन माइनस सी बाई ए, हाँ, minus C by x-intercept A. is minus C by A comma 0, right? And Q का coordinates क्या है? 0 comma Minus C by B. C by B. minus C by B, right? Okay. And A का coordinates को हम x1 y1 मान रहे, okay? And PQ का distance क्या होगा? What is the distance PQ? If I know the coordinates of P and Q, can I find the distance between P and Q using distance formula? Okay. So area पहला मैं staircase formula से निकालने के लिए कोशिश करता हूँ. Half of first point is x1 y1, right? The next point is minus C by A comma 0, 0 comma minus C by B, and complete it with x1 y1. Okay. Clear? डाउनवर्ड एरोस को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, अपवर्ड एरोस को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? सो डाउनवर्ड एरोस क्या क्या है? 0. सो तीन प्रोडक्ट्स में दो तो जीरोस हो गया. सो एरिया इज नथिंग बट हाफ ऑफ सी स्क्वायर बाई ए बी. ओके, सी स्क्वायर बाई ए बी. एंड अपवर्ड एरोस क्या है? देखिए, अपवर्ड एरोस में आपको एक 0 इंटू 0 0 हो गया, बाकी दोनों नॉन जीरोस है. सो सी स्क्वायर बाई ए बी माइनस सी बाई 1 बाई ए, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ भी प्लस सी एक्स 1 बाई बी. ओके,
आप हाफ एक सी बाहर कर सकते हैं, एंड अगर ए बी आप एलसीएम लिया तो आपको क्या आएगा, वन बी वाई वन प्लस सी आएगा। एक बार करके देख लीजिए। दैट इज इक्वल टू सी बाय टू ए बी टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ओके, this is the area of the triangle using staircase formula. So if this perpendicular distance is called h, what is area of the triangle using the formula half into base into height? So it is also equal to base कितना है? This base is nothing but root of c by a whole square plus c by b whole square. So c square times 1 by a square plus 1 by b square. That is equal to c into root of a square plus b square by ab आएगा. This is what you get. Derivation करके देख लीजिए. So half of c by ab times root of a square plus b square times the height h. अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना. These two have to be equal, right? सही क्या नहीं? Both are areas of triangle APQs. So दोनों इक्वल होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. So यहाँ एक मॉड लगाओ, क्योंकि एरिया फॉर्मूला में मॉड आता है ना. स्टेयरकेस फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा मॉड होगा ना. तो ये दोनों की इक्वेट किया तो c by 2ab कैंसिल हो गया. So what is the formula for h? h is simply equal to, बोल सकते हैं क्या बचा है? h is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं कोई. ठीक है, डेरिवेशन इज जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस. आपको कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा डेरिवेशन. सो याद रखने का जरूरत नहीं है. बट अगर याद हो गया आप कुछ नहीं कर पाइएगा, राइट? कितने लोग को याद हो गया डेरिवेशन? अच्छा है. ठीक है, सो भूलने का कोशिश मत करिए. अगर भूल गया तो भूल गया. यू डोंट नीड टू ट्राई एंड फॉरगेट. याद हो गया तो याद हो गया. सो इफेक्टिवली कैन रिमेंबर दिस प्रूफ इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स. एक है स्टेयरकेस फॉर एरिया निकाले एंड हाफ इनटू बेस टू हाइट्स क्या निकाले हैं, दोनों को इक्वेट किया, यू गॉट द आंसर. इज इट क्लियर? एक बार अच्छे सा फॉर्मूला लिखेंगे. Shall we write the formula nicely? नेक्स्ट पेज में चाहिए. अब जो फॉर्मूला जो लिखने वाला हूं, दिस फॉर्मूला हैज टू बी रिमेंबर्ड. क्या है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ax1 y1 from line ax plus by plus c equal to 0 is, फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? किसी को याद हो गया? मॉडुलस ऑफ व्हाट?
What lesser? ax1 plus by1 plus c. x1 plus b y1 plus c divided by by root over a square plus b square. root of a. देखिए ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करता हूँ, ओके। देखिए कितना इजी है, आपको ही लगेगा बहुत ही इजी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, एक लाइन है। मान लीजिए लाइन का इक्वेशन जो है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15, ओके। हो सकता है। मान लीजिए एक पॉइंट है 1,5, ओके। आई जस्ट वांट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ओके। सो देखिए कितना इजी है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज नथिंग बट, क्या करना है देखिए, यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्मूला। सिंपली ये लाइन का इक्वेशन को जस्ट राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइन का इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है समथिंग इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका? 6x प्लस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर सबस्टिट्यूट करिए। ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज नॉट ऑन दिस लाइन, राइट। इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा ना, ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर तो नहीं है, तो 0 आएगा या नहीं आएगा? इसमें सबस्टिट्यूट किया तो 0 नहीं आना आएगा। चाहिए, नहीं आएगा ना, कुछ नंबर आएगा, राइट। सो सबस्टिट्यूट कर लीजिए। सबस्टिट्यूट किया तो क्या आएगा देखिए, 6 इंटू 1 6 प्लस 8 5 40, ओके, माइनस 15, ओके। इसका मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c का इतना ही मतलब है, इस पॉइंट को इसमें सबस्टिट्यूट कर लीजिए। जो भी नंबर आएगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो द आंसर इज कितना? कितना है आंसर? 6 प्लस 40, 46 माइनस 15 कितना? 31 बाय रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज 10। 10। सो इतना है, सिंपली 3.1 यूनिट्स। हो गया आंसर। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ा, जस्ट आप इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर सबस्टिट्यूट करना है। सो जो भी नंबर आएगा बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिव्स यू द आंसर। इज इट क्लियर? अगर समझ में आया तो हाँ बोल सकते हैं। यस। आ गया सर। अब आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख लीजिए, ओके। ठीक है, आई जस्ट वांट द फाइनल आंसर। आपको कुछ टेबल दिख रहे हैं? हाँ सो सर दिख रहा है। 3x plus 4y minus 10 is equal to 0. The point is something like मान लीजिए 5,6। जस्ट आंसर चाहिए मुझे, जस्ट वांट टू फाइंड द आंसर।
सर 29/5 सर, कितना? 29/5 49/5 29/5 सर, 29/5 29/5 क्या किया? जस्ट इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट किया। कितना है? हाँ 29 आया था क्या? पॉइंट को Yes, सब्स्टिट्यूट sir. किया था। बहुत अच्छा है। डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5। हो गया आंसर। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 12x प्लस 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0.1, 3 से डिस्टेंस चाहिए। x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 -3, 2 से डिस्टेंस चाहिए। ओके 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0 1, 2 सर से डिस्टेंस जो है 5 यूनिट्स है। k निकाल सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन। सर हाँ सर सेकंड वाला 33/√10 आएगा। कितना? 33/√10 सबका सेम आंसर आया? सर रूट 10 कहाँ से आएगा बेटा आपको? -33/13 सर -33/10 -33/13 सर। हाँ 10 कहाँ से आ रहा है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना? ओ सर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ सर। कितना कैलकुलेशन मिस्टेक होता है? 33/13 आएगा। हाँ रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कहाँ से 10 हो जाएगा? कैलकुलेशन मिस्टेक भी थोड़ा सा होना चाहिए ना। तो कितना आ रहा है ये? 33/13 33/13। देखिए बेटा जब इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा, नंबर पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, बट एनीवे मॉड है ना आपके पास, फॉर्मूले में एक मॉड है, सो जस्ट नीड टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू। ओके थर्ड का आंसर कोई बोल सकते हैं? सर Someone? 0 हाँ 0 हाँ? आ रहा है। 0 आया ना? 0 देखिए अगर पॉइंट गलती से इस लाइन के ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 0 ही होगा ना। सो आपको 0 आंसर आ जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर ऑल द टाइम। ओके so if the point lies on the line, the distance will turn out to be 0. okay ये क्वेश्चन कोई कर सकते हैं? ये थोड़ा सा डिफरेंट है हल्का सा। बोला है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस k इज इक्वल टू 0 1, 2 से डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स दे दिया मैंने, k निकालना है। सर -1 आता है। दो आंसर्स आएगा, ध्यान से दोनों आंसर्स चाहिए मुझे। अब ध्यान दे दीजिए मॉड होगा, मॉड को जब आप सॉल्व करते हैं यू विल गेट 2 आंसर्स। आई वांट बोथ द आंसर्स। सो कैसे सॉल्व करिएगा? जस्ट पुट कर लीजिए। पुट किया तो 3 + 8 कितना? 11 + k का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज 5 विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। सही है? ये है ना इक्वेशन। 11 + k का मॉड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। सो मॉड ऑफ 11 + k इज इक्वल टू 25, राइट? So 11 plus k is equal to plus or minus 25. सही है? So k का 2 आंसर्स आएगा। What are the possible answers for k? k is equal to, बोलिए फर्स्ट आंसर प्लस 25 लिया तो k कितना आएगा? 14 आ सकते हैं। ओके माइनस 25 लिया तो -36 -36। ओके 36 सो ध्यान दे दीजिए whenever you are solving equations involving modulus आपको 2 आंसर्स आएगा, दोनों लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस तो आज का क्लास का टॉपिक समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। तो आपका थर्सडे का टेस्ट का टॉपिक्स क्या होगा?
फिर स्ट्रेट लाइन ही होगा. ओके सर इस बार लिमिट्स नहीं होगा ना? इस बार Okay, लिमिट्स sir. क्या नहीं होगा, बट एक दो क्वेश्चन आ भी सकते हैं. ठीक है, जो प्रीवियस जो टॉपिक्स है वो आप रिवाइज करते रहना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊंगा. ओके सो इस बार मैं नहीं दे डिफरेंशिएशन रहा नहीं हूँ. आएगा सर. इस बार डिफरेंशिएशन नहीं आएगा. सिर्फ स्ट्रेट लाइन से आएगा. ओके कल तक जो कंप्लीट होगा वहां तक आएगा, बट थर्सडे एग्जाम में. Okay, sir. ओके Yes, sir. सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. ओके बेटा, अच्छे से रिवाइज करते रहिए क्वेश्चंस को. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके बाय बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.